सुहेल एंड गरिमा आर बोथ हिंदी टीचर्स, दोनों हिंदी टीचर हैं, ठीक है, who teaches class 8 students. सुहेल एंड गरिमा both are Hindi teachers, okay, both are Hindi teachers who teach class 8 students. In a typical day, in Suhail's class, has students seen to freely sit wherever they wish. जहां चाहे बच्चे स्वतंत्रता से बैठ सकते हैं, ऐसा उनको देखा गया. Some students sit together in a group reading books and discussing a story. ठीक, कुछ बच्चे जो है समूह में बैठ के किताब पढ़ रहे हैं और किसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं. Other are busy sitting alone and reading quietly. कुछ बच्चे जो अकेले बैठ के चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं. Yet others are seen huddled around सुहेल, ठीक है, कुछ सुहेल के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो उन्हें कोई कहानी सुना रहे हैं, ठीक है. Who is seen narrating a story to them. सुहेल कुछ कहानी, सुहेल जो है एक हिंदी शिक्षक है, वो अपने स्टूडेंट को कुछ कहानी सुना रहे हैं, ठीक है. Only at the end of the class does सुहेल ask them, ठीक है, only at the end of the class does सुहेल ask them to sit on their seats and discuss what they have done, ठीक है. ओके, तो एट द एंड उनको वो क्वेश्चन पूछते हैं, उस पर चर्चा के लिए कहते हैं, ठीक है. ये सुहेल के बारे में हो गया. एक और बार देख लेते हैं सुहेल का क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन है. इन सुहेल्स क्लास students are seen freely sit wherever they wish. Some students sit together in a group reading books or discussing a story. Other busy in sitting alone reading quietly. तो तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं यहाँ पे. एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो है खुद से किताब पढ़ रहे हैं और स्टोरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, खुद से बैठ के अपने अपने अकेले वो अपना जो है पढ़ाई कर रहे हैं. और तीसरे ग्रुप के बच्चे सुहेल के चारों तरफ बैठ के they are listening to him because Suhail is narrating a story. At the end of the class, Suhail is asking, okay, to sit on their seat and discuss what they have done. And on other side, Garima's class अगर देखेंगे, at any given point of time, children are sitting at their desk. Books are kept neatly on the table, and children read quietly with pencils in their hands. Garima reads the story out aloud, explaining the meaning of difficult word which students note in their books. After explaining the lesson, she dictates answer to the questions at the end of the lesson. All the students follow the instructions. तो गरिमा की क्लास में बात करेंगे, तो गरिमा की क्लास में बच्चे हर समय अपने डेस्क पर बैठे देखने के लिए मिलेंगे. किताब डेस्क पर सुव्यवस्थित रूप से रखी होती हैं उनके क्लास में. बच्चे के हाथ में पेंसिल होता है, चुपचाप पढ़ रहे होते हैं. और गरिमा जो है सस्वर कहानी को पढ़ के कठिन शब्दों का एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसके बाद डिक्टेशन करते हैं. मतलब पाठ का पाठ को समझाने के बाद वह पाठ्यांश प्रश्नों के उत्तर लिखवाती हैं, डिक्टेट करती हैं, ठीक है. और बच्चों को इंस्ट्रक्शन मानने के लिए बोलते हैं. सभी छात्र उसके निर्देश को पालन करते हैं. तो ये हुआ हमारा दो सिचुएशन. देयर आर टू सिचुएशन गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ठीक है. दो पैराग्राफ है, दो सिचुएशन है. अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. क्वेश्चन फर्स्ट, सुहेल इन स्टूडेंट्स इन सुहेल क्लास, सुहेल की कक्षा में छात्र क्या करेंगे, are likely to learn more as he gives them space and freedom, ठीक है. will fail as they spend the whole time having fun, will pass if they take home tuition, or will pass because of Suhail, ठीक है. तो ये चार ऑप्शन है. Everyone answer this particular question. You can say along with, you can option 1. Okay, you can option 1. Okay, everyone देखो. So let me ask you one question कि which class is better first, whose class is better, मतलब सुहेल का क्लास बेटर है या किसका है? Suhail's class is better. Suhail class is better. Okay, so that you understood the thing. Okay, आपको जो चीज जो समझ में आ गया, ठीक है, आपको जो चीज समझ में आ गया, इसका मतलब आप आंसर कर सकते हो. So Suhail's class is better basically, ठीक है. Why Suhail's class is better? Because in the modern day education system, always you have to remember the concept, that is the modern day education system.
In the modern education system, dictation and rote learning, strict discipline, okay, and no interaction, no democracy is not promoted. Okay, if you see the things in Garima's class, आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि here absence of democratic learning is there. In the Garima's class you can see that there is no democracy, because democracy का absence यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, because the children are instructed to follow her instruction. All the children follow her instruction. उनको instruct किया गया है कि instruction follow करना है. ठीक है? How we can understand the things? Children are sitting at the desk. This is a normal thing. This is not a unusual thing. This is a normal thing. Children can sit at their desk. But the thing is that Garima read the story out aloud, explain the meaning of difficult word, and the student note in their book. Okay, this is also usual, but the thing is that here you can see here that she dictates answer to the question at the end of the lesson. When a teacher dictates the answer to the student, then the creativity, curiosity, and active knowledge construction process cannot be completed. ठीक है? जब कोई शिक्षक जो है बच्चों को डिक्टेट कराते हैं ना, उस टाइम में जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग. एक तो हो गया आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, और दूसरा ये आपका हो जाता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन. दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन. ये फॉर्मूला की तरफ से आप याद रख सकते हो. ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन या फॉर्मूला आप कह सकते हो, इसको याद रखना हमेशा. एक्टिव पार्टिसिपेशन प्लस नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज द एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस दैट इज प्रमोटेड इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. सो इफ यू सी गरिमा's class, then active participation is not there and knowledge construction is not there. How? Because वो चुपचाप अपने यहाँ पे बैठते हैं. देखो हर जगह पे आप देखने के लिए मिलेगा कि वो चुपचाप बैठे हैं अपने जगह पे. ठीक है, एट द एंड वो अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, जो टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं है, और यहाँ पे क्योंकि डिक्टेट्स कर रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर, तो वो खुद टीचर डिक्टेट कर रहे हैं. आफ्टर एक्सप्लेनिंग द लेसन शी डिक्टेट्स आंसर टू द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेसन. तो यहाँ पे नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी नहीं हो रहा है. So active knowledge construction process is not there. That means it is not a democratic classroom, as well as it is not promoting the modern education system, and that's why this classroom is not better. Whereas if you see the Suhail's classroom, you can feel that it is disorganized. आपको लग सकता है कि ये जो है ऑर्गेनाइज नहीं है. ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है चीजें. The students are not disciplined, you can see. But if you see properly, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि some students are doing group reading, that is group discussion, that is promoted in the modern education system. Group discussion को modern day education system में promote किया जाता है. Group reading you can see. The first democratic way of learning is your group reading, group discussion. Discussing a story, discussion is always the best, okay, best method for active participation. So here discussion is there, that means active participation is there, AP is there. The second thing, they are reading themselves quite. यहाँ पे second आप देख सकते हो कि some students are busy sitting alone, quiet, reading quietly, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं. That means they are trying for the knowledge construction process. They are trying for the knowledge construction process, that is your by sitting themselves quiet, sitting themselves and reading quietly. The third one, Suhail is narrating them story, and at the end of the class discussion is there. Suhail asks them to sit together and discuss. That means here your active participation is again there. That means it is promoting active knowledge construction process. ये इक्वेशन आप याद रखना. अगर ये याद रखते हो तो हमेशा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. So you understood the concept. Now let us see the question. The first question is, Suhail's students of Suhail's class are likely to learn more as he gives them space and freedom. And the concept of space and freedom, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अवसर व स्वतंत्रता देते हैं. इसका मतलब ये है कि the students are in democratic classroom, and the students who are in democratic classroom can construct their own knowledge. ठीक है, knowledge एक केस यहाँ पे होगा, active knowledge construction process यहाँ पे होगा, and that's why this will be the answer. यहाँ पे fun नहीं है ये. ठीक है, यहाँ पे discussion is not a fun learning is okay, ये fun होगा, good, very good, fun होना चाहिए. Learning should be fun.
students should not realize learning is their need, they should learn the things in fun, ठीक है, in a funny manner. वो चीजों को जितने आसानी से जितने मजे से सीखेंगे that is उतना अच्छा है, ठीक है. और डेमोक्रेटिक लर्निंग होना चाहिए, अपने हिसाब से अपने पेस से बच्चे सीखना चाहिए. Fun is all okay, not it's not means a wrong thing, so it is okay, but the actual जो most appropriate answer will be the first one. ये होम ट्यूशन का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज सुहेल्स की क्लासरूम में सफिशिएंट है और विल पास तो डेफिनेटली, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है. ओके, आप सब लोगों ने भी सही आंसर दिया, सो वेरी गुड एवरीवन. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन सुहेल्स क्लास क्या करेंगे, ठीक है, आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, शुड मेक ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, must have arranged tuition for their children and are showing trust in the teacher. बताओ. Someone is saying I think second option. कोई बोल रहे हैं कि second option? Anyone? Second. Yes sir. See, I think you could not understand properly. See, I told कि Suhail's class is democratic class. Okay, that's why in a democratic class the parents will not complain because in the present education system we are promoting the democratic classroom. That's why the parents will not complain against him. ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि Suhail's class is not bad, ठीक है. So then उसको complain करने का जरूरत नहीं, it's not bad. So that's why it is a good classroom and as compared to Garima it is better. That's why complain करने का कोई जरूरत नहीं, home tuition का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है. And then the first and the fourth option say which will be the correct option. तो कुछ लोगों ने fourth बोला. Fourth देखो, आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द चिल्ड्रन एजुकेशन, ऐसा भी नहीं है कि जो है अपने बच्चे के बारे में वो बदर नहीं करते, मतलब चिंता नहीं कर रहे हैं. दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट देयर चाइल्ड बट दे आर शोइंग द ट्रस्ट इन द टीचर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंप्लेनिंग, दे आर बिलीविंग द टीचर विल डेफिनेटली डू गुड फॉर द स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द फोर्थ वन. कि जो पेरेंट्स हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं सुहेल के ऊपर कि ये डेफिनेटली बच्चों का अच्छा रिजल्ट की तरफ जो है उनको लेके जाएंगे, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग. द फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. शिक्षक में वो विश्वास रखते हैं बिकॉज इफ ए टीचर इज टीचिंग वेल देन द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स इज टू सपोर्ट द टीचर, ठीक है. जो पेरेंट्स का ड्यूटी होता है, अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, देन द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सपोर्ट द टीचर, ठीक है. क्लियर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन योर थर्ड क्वेश्चन सी द स्कूल प्रिंसिपल ईच, स्कूल का प्रधानाध्यापक कैसे हैं वो, कीपिंग ए चेक ऑन टीचर, फोकस्ड ओनली ऑन रिजल्ट ऑफ द स्कूल, लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, स्ट्रिक्ट टू द स्टूडेंट्स. आंसर दो. ऑप्शन anyone other than 3 you can tell freely because this is a practice class. Okay, option third. yeah, ठीक है. तो देखो ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर. व्हाई नॉट फर्स्ट? बिकॉज the school principal is not keeping a check on teacher, because if the principal will keep a check on the teachers then Suhail's classroom will also be organized like Karima's class, ठीक है. So that's why it is not correct option. Then second is focused only on result of the school. If the principal will focus only on the result of the school, then Suhail's liberal attitude towards students or giving independence to the students will not be allowed in the classroom, because result will be hampered by giving more freedom to the students. So some things are there कि बच्चों को ज़्यादा freedoms देने से results हमारा जो है खराब हो सकता है, ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है ना. दे थिंक लाइक दैट कि ज़्यादा फ्रीडम देने से रिजल्ट के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता, बिकॉज गिविंग मोर फ्रीडम इज गिविंग them the way to learn themselves, to construct the knowledge themselves and to become effective citizen. सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, ठीक है. we need to make the students effective citizen of the society, ठीक है. तो इसीलिए उनको इंडिपेंडेंस दिया जाता है. वो रिजल्ट से ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छा भी होता है. लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छा होगा इसीलिए हम लोग उनको जो है लिबरल कर देंगे, ऐसा भी नहीं है कुछ, ठीक है. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड और मैचिंग विद द ऑप्शन.
क्वेश्चन, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। स्ट्रिक्ट तो नहीं है, अगर स्ट्रिक्ट होते तो वो अलाउ नहीं करते, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते तो अलाउ नहीं करते बच्चों को कि क्लास के टाइम में अपने आप बैठ के बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपने आप जो बैठ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12th के क्लासरूम में जो हो रहा था वो अलाउड नहीं होगा अगर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होंगे। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, उदार एवं प्रगतिशील हैं स्कूल प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई ही इज अलाउइंग द टीचर सुहेल टू डू एज पर हिज विश and also allowing student to do as per their wish, ठीक है। So this is the answer. Then the last question of this particular paragraph is the main aim of school should be to ensure that, main aim, school का main aim क्या होना चाहिए। हम स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि RIC में मतलब हमारा 4th टॉपिक है, ठीक है, हमारा 4th टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखो मेन एम ऑफ स्कूल शुड बी, ऑप्शन 2 okay, students say discipline like Garima's class, learning is enjoyable for all students, children be given complete freedom, a strict policy be adopted for controlling teachers classroom behavior, ठीक है, clear। सर ऑप्शन 3 ऑप्शन 5 ओके, यहाँ पे सब लोग थोड़ा थोड़ा अलग आंसर आप लोग दे रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स से डिसिप्लिन लाइक गरिमास क्लास, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आई टोल्ड कि फ्रीडम शुड बी गिवन टू देम एंड लर्निंग शुड बी एंजॉयबल, फन वे में लर्निंग होना चाहिए। तो मेन एम जो है ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द रॉन्ग वन। लर्निंग इज एंजॉयबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज डेफिनेटली लर्निंग, मैं अभी आपको कुछ देर पहले बोला था ये चीज कि लर्निंग शुड नॉट बी ए नीड, दे शुड नॉट फील दैट इट इज देयर नीड, दे शुड फील इट इज एंजॉयबल, दे शुड फील रीड इन ए फनी मैनर, फन करके पढ़ना चाहिए उनको, एंजॉय करके पढ़ना चाहिए ताकि वो जल्दी सीखते हैं। जो भी चीज़ हम एंजॉय करके पढ़ते हैं वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है, इफेक्टिवली रहता है। चिल्ड्रन बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम, ऐसा भी नहीं कि उनको कंप्लीट फ्रीडम दे दो कि वो कुछ भी चाहे कर सकते, क्लास के बाहर जाके घूम रहे हैं, ठीक है, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई क्लास नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं करना है, कंप्लीट फ्रीडम नहीं, आपको फ्रेंडली रहना है अप टू ए सर्टेन मैनर, इस तरह से यू शुड गिव देम फ्रीडम अप टू ए सर्टेन मैनर इन प्रॉपर डिसिप्लिन, ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन वे में उनको एक फ्रीडम आपको देना है, जो कि हमारा यू नो अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू नो अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट पता चल जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गिवन सम फंडामेंटल राइट, हमको फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, बट द राइट्स आर नॉट मींस completely you completely giving you freedom, there are some reasonable restriction, rights are not absolute, ठीक है, right absolute नहीं है, there are some reasonable restriction on them, on you, on us, ठीक है। like for example हमको जो है रास्ते में चलने का अधिकार है, ठीक है, जो है हम रोड पे सब लोग आराम से जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पीछे बहुत बड़ा सा पोल, ठीक है, बहुत बड़ा सा जो है कुछ ऑब्जेक्ट रख के चलूंगा, पूरा रोड को कवर करते हुए चलूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो बाकी लोगों को दिक्कत होगा, बाकी लोगों का भी तो फंडामेंटल राइट है ना। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं जो है बहुत ही लाउड नॉइज में डीजे ये करूंगा, ठीक है, मुझे कुछ भी करने का अधिकार है, ठीक है, तो मैं बहुत लाउड नॉइज में जो है डीजे साउंड्स जो है मैं बजाऊंगा, तो क्या वो सही है? नहीं, पुलिस आ जाएगा मेरे पास, क्यों? क्योंकि दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो फंडामेंटल राइट है अच्छे से जीना, ठीक है। और उस तीसरा चीज कि मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है, तो मैं देश के विरुद्ध तो नहीं बोल सकता, उसमें भी रीजनल रेस्ट्रिक्शन है, कुछ भी बोलने का। यू कैन राइट टू स्पीच है आपका, ठीक है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो आप एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप टेररिस्ट एसोसिएशन फॉर्म करो। तो हर राइट के पीछे कुछ रीजनल रेस्ट्रिक्शन लगा होता है, इसी तरह से बच्चों के फ्रीडम के पीछे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर रेस्ट्रिक्शन थोड़ा नहीं रहेगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो स्टूडेंट्स विल नॉट रेस्पेक्ट यू, आपको रेस्पेक्ट, आपको ओबे नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। सो दैट विल कंप्लीट डिस्ट्रॉय द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई पूरा कंप्लीट फ्रीडम नहीं दिया जाता। जहाँ पे कंप्लीट वर्ड यहाँ पे लिखा है, इसको रॉन्ग करना है आपको। कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, उनको फ्रीडम दिया जाता है, वो आराम से कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन विद इन द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो ये चीज इसलिए गलत हो गया। और स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी अडॉप्टेड फॉर कंट्रोलिंग क्लासरूम टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर, तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी का जरूरत नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसमें आप 99% क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, तो
तो RIC के 30 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 25 से 26 क्वेश्चन में आप डेफिनेटली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बाकी 4-5 क्वेश्चन आपका GA का होगा रटने वाला, जो डायरेक्ट आंसर होगा, फिर भी वहां पे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द सेकंड वन कि लर्निंग इज एंजॉयबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, लर्निंग एंजॉयबल होगा तो ज़्यादा टाइम तक हम याद रख पाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन था प्रीवियस पेपर का जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और हमने ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क की तरह दिया था। कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर करके भेजा भी था, तो वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं।